here. If a vector is changed other than 360 degree, then definitely vector is going to change, though it has same magnitude. Next question is it possible to add two vectors of unequal magnitude and get 0? Is it possible to add three vectors of equal magnitude and get 0? Yes. When you were adding the three vectors of the equal magnitude and you want to get it 0, what does it mean? It is going to form a one equilateral triangle, isn't it? Of regular polygon of three sides. इसका एग्जांपल यही होगा ना, समझ रहे हैं? Can you add the three unit vector to get a unit vector? Can you add a three unit vector to get a unit vector? How? तो same direction ही कॉपी दो same direction ही कॉपी है ना? दो को अगर आप बोल रहे हो कि सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं और एक को अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जा रहा है. इसके अलावा भी और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यही पॉसिबिलिटी होगा ना. अगर आप रेगुलर साइड का भी अगर सोच रहे हो तो थ्री यूनिट वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा स्क्वायर अगर सोचे हम लोग लाइक अगर कोई ऐसा सोचता है एक इस साइड का है एक ऐसा है और एक आपका ऐसा है तो अगर आप स्क्वायर सोचते हो तो इसका रिजल्टेंट जो है आपका कैसा फॉर्म होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द वन वेक्टर एंड गोज टू द हेड ऑफ द अदर. इसका रिजल्टेंट तो यही होगा ना. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कैसा फॉर्म हो रहा है? फोर साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जिसका ईच साइड कितना हो 1, isn't it? बोलिए. ठीक है. नेक्स्ट इज कैन वी हैव physical quantities having magnitude and direction which are not vectors? Current, heat. Whenever we are talking about the direction means quantity must have a specified direction. Like in the case of heat also, heat is nothing but in a form of energy, we discuss it. It is going to move all around. It has not any specific direction which we can define at a particular point. Pressure is also the same. It has impression to push from all around. Which of the following two statements is more appropriate? Two forces are added using triangle rule because force is a vector quantity. Force is a vector quantity because two forces are added using triangle rule. No, a quantity is not a vector quantity. It does not follow triangle. Like Triangle rule is followed in the case of vectors only. like current has Because in a space, if you are going to draw it, then you are going to get it a triangle. That we have seen. And that's why, in fact, we require this vector and the scalar to deal with the phenomena in this at least minimum of, you can say, fourth dimension of coordinate system, x, y, z and time, which is known as a space and the time. So two forces are added using triangle rule because force is a vector quantity. Force is a vector quantity because two forces are added using triangle rule. Or in direct way, we can say if any two quantities are going to be added according to the triangle rule, means it is obeys the triangle rule addition. That's why it is a vector. So in very beginning, we cannot tell this is the vector. That's why we are going to add according to the triangle rule. Triangle rule must follow those quantities which are vectors. So according to that, which one is the correct? But in very beginning, we cannot decide it is a vector quantity. Means first you add and it follows the triangle rule, then we can say it comes under vector quantity. Otherwise, he told right, current has a magnitude and direction, but it does not obey the triangle rule addition.
Next, can you add two vectors representing physical quantities having different dimensions? No, पहले ही बोला था. We need to add two vectors of this similar kind. Means displacement हम लोग देखेंगे can be added together. Velocity can be added together. Like, can you multiply two vectors? Yes. There is no such constraint in vector multiplication. Can a vector have zero component along a line is still have a non-zero magnitude? If you take the dot product also Yes. along a particular line, so its component is going to be zero, but definitely vector has non-zero magnitude. Right? Is the vector sum of unit vector I roof and j roof a unit vector? Yes, sum of two unit vector is a unit vector. Unit vector here specified direction is I roof j roof. But without mentioning I and j roof, the question is the sum of two unit vectors a unit vector. Then what will be the answer? Sum of two unit vectors is a unit vector. Is a unit vector. Equilateral triangle. अभी तो बोल रहा हूँ ना, नहीं हो जाएगा. बट यहाँ पर क्या किया, आई रूप जे रूप मेंशन कर दिया, यानी कि एंगल तो 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री वाला तो रेगुलर पॉलीगॉन बन नहीं पाएगा रिजल्ट. इसलिए तो बोला, लेकिन यहाँ आई जे रूप तो बना हुआ है ना, आई जे के बीच एंगल तो 90 बाबू होगा. Yeah, right. 4 factor B such that A is not equals to B, but A is equals to B. नहीं, हम लोग राइट कर सकते हैं नहीं? कैसे? एक इसके अपोजिट साइड में ले लिया, इसके अपोजिट साइड लेने से क्या होगा, एक निगेटिव लगा देंगे इसमें, और एक क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो m1 m2 स्लोप इज -1, तो क्या लिख दोगे, एक -3i + 4j रूप सेकेंड वेक्टर हो गया. नहीं बोल, एक क्या हो गया, -3i - 4j रूप. देखो तो मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं, यानी कि ए के जस्ट एंटी पैरेलल, दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप निगेटिव होना चाहिए, यानी इसको लिखेंगे -4i + 3j रूप, एक ये हो गया. दूसरा क्या लिखेंगे, 4i रूप -3j रूप. अरे समझ में आया कि नहीं? यानी एक ऐसा क्वाड्रेंट, मतलब ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स को लेकर मत आप पैनिक होइएगा, बात आप समझ रहे हो. तो जैसे अगर आप इसको समझें कि एक ऐसा होगा 3ij रूट, मींस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 3,4 की बात बोल रही, तो ये जो कुछ लाइन होगा ये आपका कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगी. तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन इधर जा रहा था, ये लाइन आप इधर ले लिया, और इसके परपेंडिकुलर हम दो कोऑर्डिनेट ले, बात समझ में आ रहा है? तो इधर ये -4, 3 हो गया है कि नहीं, और इधर 4, -3, तो एक लाइन इधर हो गया, एक वेक्टर, मतलब लाइन बोल रहे हैं, मतलब इधर वेक्टर हो गया और एक वेक्टर इधर हो गया. और हम लोगों को क्या लिखना है, एक और वेक्टर. आप इसको फिक्स रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ कर दो, तो किसी भी एंगल पे आप लिख लो जितना भी लिखना है, लेकिन इसमें 4 बोल रहा है. अभी समझ गए ना? इसमें 4i रूफ + 3j रूफ हो सकता है. हाँ, हो सकता है, वही तो बोल रहा है वो. ठीक है, अरे बहुत सारा वेक्टर हो सकता है, मतलब इसमें लिखने, ये सब क्यों लिखने के लिए पूछ रहा है मालूम है, ये बेसिक है, मतलब कि थोड़ा सा आप अडॉप्ट कर लो चीजों को कि कैसे कैसे ये हो रहा है. बस समझ में आ रहा है? देखिए ये दे रहा है आपको, A क्रॉस B = A.B with A and B is non-zero vector. ये कब पॉसिबल होगा? देखिए अगर वेक्टर के साइन के साथ होगा तो ये नहीं होगा कभी, ये पॉसिबल नहीं है. इधर आपको एक मॉडुलस साइन देगा, तब आप बोल सकते हो कि फॉर 45 डिग्री इट कैन बी पॉसिबल. नहीं, व्हाट इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स इज जीरो, तो भी नहीं नहीं, कैसे नहीं होगा, एक को अगर तुम नल वेक्टर बना दिए तो दोनों तो हो ही जाएगा, लेकिन ये मॉडुलस इधर स्पेसिफाई करना होगा. ठीक है,
देखिए दिया है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, कैन यू से दैट A इज इक्वल्स टू B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू, एंटी पैरेलल भी हो सकता, हाँ बिल्कुल एंटी पैरेलल भी हो सकता, तो हम लोग इसके बारे में नहीं बोल पाएंगे। इक्वल भी है कि नहीं ये भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हो सकता है दोनों पैरेलल हो जाए, नहीं बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये पहली बात, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन मैच हो रहा है यानी मैग्नीट्यूड भी मैच होना चाहिए, तो इसके बारे में अगर अनइक्वल भी है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो भी 0 हो सकता है। तो इक्वल होगा ही, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज, या इक्वल नहीं ही होगा, इसके बारे में बोल सकते हैं क्या, टू अनइक्वल वेक्टर्स are either parallel or anti-parallel. If you are going to take its cross product, in either case it is going to be 0. And if you take two equal vectors also, either parallel or anti-parallel, and again take the cross product, again it will be 0. तो श्योरिटी इज नॉट देयर कि ये होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को भी मैच करना होगा या मैग्नीट्यूड को मैच नहीं करना होगा। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये दो वेक्टर आपको दे रखा है, इसके बारे में देखिए। वेक्टर डिवीजन तो पॉसिबल नहीं होगा, पहले बोला था, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ ये तो करेक्ट है, ये तो ठीक है, ये तो आपको क्लास नोट्स में भी पढ़ना है। देख लीजिए, हैज द क्वीन एट दिस सेंटर, आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज एंड फ्रॉम द फ्रंट एज टू द पोल एंड फ्रॉम द सेंटर टू द पोल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब आपको मालूम है इसके सेंटर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका क्वीन प्लेस्ड होगा, राइट। इसको बॉर्डर लाइन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज नथिंग इज टोल्ड अबाउट द बॉर्डर लाइन, अदरवाइज प्लेइंग करते समय यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ रहता है, तो वी नीड टू नेग्लेक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दे नहीं। और ऐसे पॉकेट्स बने होते हैं, इसको होल बोल रहे हैं इसमें, आप समझे ना, ऐसे एक लाइन बना हुआ रहता है, तो आप इसको हिट करना चाहते हो, तो आपको मालूम है जब आप खेलते हैं इसको आप, तो इसको आप हिट करते हैं किसी एंगल, जिससे कि ये रिफ्लेक्ट करे नहीं, और लाइट के लॉज को जो एंगल नॉर्मल से बनाएगा उसी एंगल पे क्या होता है, फॉलो करते हुए लाइट वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इसमें चला जाता है। तो सपोज अगर आपने यहां से इसको हिट कर दिया, तो ये कहीं यहां जाता है, फिर इसके बाद ये कहीं इसमें, बोलिए। तो देखिए अगर ये एक्स डिस्टेंस पे आप इधर से हिट कर रहे हो, तो कोई कह सकता था कि नहीं मैं एक्स डिस्टेंस इधर से हिट कर, तो भी सेम सिचुएशन होता है या नहीं। कोई अगर इधर से हिट कर देता तो ये फिर ऐसे जाता और फिर इधर आ जाता। व्हाट डज इट मीन कि ये डिस्टेंस एज से ये डिस्टेंस सिमेट्रिकल होगा या नहीं, हाँ Yes, sir. यानी कि ये भी आपका एक्स ही होगा ना। Yes, sir. अब देखिए ये एंगल क्या होगा, थीटा सेम होगा। लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहां तक तो मालूम है ये 2 फीट है, बोलिए। और इस एंगल को देखें तो सेम होगा या नहीं, होगा। और ये हम लोगों को मालूम है, राइट, ये जहां पर मीट करेगा ये भी एक्स होना पड़ेगा क्या, ये वाला होगा कि नहीं। अरे इस एंगल में देखो ना, ये 4 फीट है और ये, तो दिस बाय दिस, और इसमें भी क्या है 4 फीट, नहीं Yes, sir. तो सेम ही है ना ये।
तो यहां तक ये कितना हो गया x, हुआ या नहीं? Yes. तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस x, और ये एंगल भी कितना थीटा। तो यहां से अगर आप देखिए तो tan थीटा का वैल्यू आप कितना लिखेंगे? x/2, ये कितना होगा 2, 2 माइनस x/2, और इसमें लिखोगे तो कितना हो जाएगा x/4, होगा कि नहीं? तो ये 2 2 2 कैंसिल, यहां से आया आपका 4 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। सो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 4/3, होगा कि नहीं? 4/3 फीट। अब तो कैलकुलेट करना है आपको। आपको पूछा था अगर इसको हम लोग O बोल दें और इस पॉइंट को A एंड से दिस पॉइंट इज योर B, नहीं तो आई थिंक अब OA का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं भाई ये लास्ट है ना, तो मैं बोर्ड पे चला जाता, ठीक है। V से V वेक्टर, इसको कुछ x मान लो, इसको कुछ y। V वेक्टर जो है ये मॉड V कुछ I रूफ है या कुछ V रूफ है, वट एवर द डायरेक्शन यू वांट, यू कैन असाइन। दिस इज फिक्स पॉइंट O एंड दिस इज द P पॉइंट P, अगर इसको तुम पार्टिकल बोल दो। It's a given that it's moving with constant velocity. What does it mean? Its direction of motion is fixed, isn't it? Yes. Constant means direction of motion is fixed. So at this instant, if you draw its position, then its position will be PO. यही तो बोलेंगे। Yes. आप जब बाबू इसका क्रॉस लेंगे तो सपोज ये कुछ एंगल थीटा बना रहा हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ PO ग्रुप। ठीक है। So if you take the cross product of OP with V, नहीं, Yes, sir. then it's the direction will be perpendicular to this plane। और मैं बोला था आप इसको क्या करो, ऐसे रोटेट कर दो। मेरे बात समझ में आ गया? Yes, sir. नहीं बोल रहे? Yes, sir. तुम लोग ठाकुर का पूजा किए है कभी? नहीं बोल रहे? अरे ठाकुर उकुर का पूजा करता है तुम लोग या नहीं? नहीं, टाइम नहीं मिलता है ना। घर में तो लोग करते होंगे। हाथ में अगरबत्ती लेकर कैसे करते हैं, ऐसे या ऐसे? Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब किधर हुआ? देखो क्लॉकवाइज में स्क्रू बोला था किधर जाता है, अंदर या तुम्हारे तरफ? अवे फ्रॉम यू, इनवर्ड, अंदर। ठाकुर किधर रहते हैं? सामने। तो तुम ठाकुर को ऐसे बोले तो ठाकुर तुमको ऐसे आशीर्वाद देता है। बात समझ में आ रहा है? अरे समझा कि नहीं? तो इस सेंस ऑफ रोटेशन से समझ रहे हो ना, ये सेंस ऑफ रोटेशन जो है मीन्स ये इसके तो परपेंडिकुलर ही होगा। ये दोनों वेक्टर को तो तुम फिक्स कर दिया था। तो डायरेक्शन के बारे में तो हम लोग को सोचना नहीं है कि डायरेक्शन के बारे में प्रॉब्लम है किसी को। तो डायरेक्शन ना सोच के आप किस बात सोचिए, आप मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो फिक्स होगी। तो आप लोगों को मैं क्या बोला, ये अगर आप एंगल को देखें, अगर ये थीटा है आपका एंगल, नहीं तो ये एंगल भी थीटा शायद होगा, नहीं बोल रहे। और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा है दो वेक्टर का, उसको क्या लिखते हैं हम लोग? मॉड ओ ओपी मॉड भी साइन ऑफ थीटा। इसके साथ ये भी आपको बताया था मॉड भी, इसको आप क्या बोलते हैं? ऑन मॉड भी, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था वेक्टर की क्लासेस में। आप फिर से मत बोलिए कि सर बार बार ड्रॉ कीजिए ना, देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। ये समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो कोई कह सकता है कि अब यही जो है आपको डिफरेंट लोकेशन में दिख रहा है, ये कहीं यहां चला गया पार्टिकल, ये यहां भी है क्या कांस्टेंट भी,
तो आप क्या कहोगे कि ये इसका पोजीशन है, ये कुछ एंगल क्या हो गया होगा, फाइव हो गया होगा ना। अब इसको अगर हम लोग कुछ पी प्राइम बोलते हैं तो ओपी प्राइम वेक्टर भी करोगे मॉड, अभी भी तो डायरेक्शन सेम है, सो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ओनली मैग्नीट्यूड वाइज। तो आप क्या लिखोगे, ओपी प्राइम मॉड भी साइन, इसको अगर आप फिर से रीअरेंज करो तो लिखोगे साइन फाइव टाइम्स मॉड भी नहीं। और अगर आप इसको फिर से ड्रॉ करो तो देखो ये फिर क्या हो गया, फाइव नहीं बोले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपी प्राइम साइन फाइव, यस सर। ये वाला। और थोड़ी देर पहले जो आप ये जो ड्रॉ किए थे, ये आपका ओपी मॉड साइन थीटा था, ये वाला। अगर इसके कोऑर्डिनेट को बाबू अगर आप फिक्स कर देते एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट में आने के बाद इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स नॉट कॉमा वाई ही रहता है कि वाई भी चेंज हो जाता। तो ये बताइए, ये मैथ्स है या फिजिक्स? ये मॉड ओपी साइन थीटा ओपी प्राइम साइन फाइव, ये जो आप लिख रहे हो, इज दिस वाई कोऑर्डिनेट और नॉट? यस सर। तो ये जरूर चेंज हो रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर आर्म क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फिक्स, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स मूव कर रहा है। तो ये आपका मैथमेटिक्स है कि फिजिक्स?